ਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ। ਬੰਦੇ ਨੁਤਫੇ ਦੇ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਮਸਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। 1.5 ਸਾਲ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਗਨੋਰ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਭੈਣਾ ਪੁੱਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਖੜਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਟੋਗੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਦੱਸੀਏ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਿੰਦਾਦ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਦਾਦ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਸਦ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ। अच्छा, गुजारिश है वे कि पहले तो मैं अच्छा उर्दू में बात कर लेते हैं। पहले तो मैं नफ़ी करता हूँ ये काम सही नहीं है, मैं इसका जो है ना वो बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। किसी की तस्वीरें लगा के कोई भी हो, हम ज़ाती तौर पे किसी का भी, भले कोई कादियानी भी है ना जिनके साथ हम डिबेट्स करते हैं, तो मैं तो ये भी नहीं समझता कि मिसाल तल्लत मलक है, वो अगर कोई करता है तो हम उसकी तस्वीर लगा के उस एक शख्स को जो है ना वो उसके ऊपर पूरी बुराडें करें और बैठे रहें। इतना वेला तो कोई भी नहीं है। तो शख्सियात तो हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखती, वो कोई भी हो। अच्छा ये एक बंदा ही नहीं है, ये शाहिद या कोई, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, कोई एक दो तो नहीं है। अब मैंने जो हिसाब लगाया ना, ये लोग गालियां इस वजह से निकालते हैं
हुआ ये है कि ये एक आध दफा हमारी ब्राडों के ऊपर आए और इन्होंने निकाली मिर्जे कादियानी को गालियां। जब गालियां निकाली ना तो हमारे लोगों ने इनको रोका या आमिर भाई ने रोका और एक आध दफा मैंने भी रोका। तो इब्तदा यहां से हुई थी कि इनके नफ्स के ऊपर ग्रां गुजरा कि यार हम तो बहुत बड़े और हम तो पहले से टिकटॉक पे बैठे हुए थे और ये लोग अब बाद में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे टिकटॉक पे एक इमेज बना हुआ था कि बड़े मतलब गुंडे हैं और समझ रहे हैं ना, बदमाश टाइप। तो हम लोगों को रोकते थे, तो ये हमें आके रोक रहे हैं। ये क्यों रोक रहे हैं? ये हुई है इब्तिदा, यहां से हुई है। असल में बात के सिरे तक पहुंचने की बात चली कहां से थी? तो ये एक बंदा तो नहीं है, बंदे तो बड़े हैं, काफी बराडे हैं। मैं नाम नहीं लेना, मुनासिब नहीं समझता। तो वो फिर ये है कि ज्यादा जोर जो है ना वो आमिर भाई के ऊपर चला है, मेरे ऊपर भी चला है लेकिन कम, यानी थोड़ा। तो वो ये है कि आमिर नज़ीर को टारगेट किया गया कि ये जो है ना ये ऐसे है, कभी वाबी के नाम के ऊपर, कभी कि ये कादियानियों को बिठा के गालियां निकलवाता है, ये तौहीन करवाता है। मतलब वो फिर वो अच्छा, ये है ना, आटा गुंदी साहब, आटा गुंदी हिलदी क्यों? ये बात कर लेने दें, बात कर लेने। तू एडी माजरत थल्ले बह के करना, एडा तू शाहूकार नहीं है कि तू पहले विच माजरत। पहले गल सुन, मुफ्ती साहब करते पे ने तन्नू तो बहुत। ये है कि वो फिर जब किसी से बुग़्ज़ या अनाद हो जाए ना, उसकी फिर हर चीज ही गलत लगती है। क्योंकि अब देखें, खिलाफ बोलने के लिए किसी ना किसी चीज को तो इशू बनाना है ना। जब कोई चीज ही नहीं मिलेगी तो इशू कौन सा बनाएंगे जी? भाई कोई तो चीज होगी खिलाफ बोलने के लिए। अब देखिए, ये यूसुफी है, मैं अभी तक तो सही हूं, तो ठीक है जी, काम बिल्कुल सेट चल रहा है। जब मेरी इसके साथ बिगड़ेगी तो मैं अब क्या करूं? वो देखो जी, ये लाल शर्ट पहन के आता है, चलो ये एक मौजू मिल गया, मैं इसके ऊपर बराड कर दूं, गालियां निकालनी शुरू। लाल शर्ट क्यों पहनता है? ये तो यहूदियों का तरीका है। भाई बात ही करनी है ना, जब कोई गाली निकालनी है या बुग़्ज़ अनाद निकालना है, फिर वो बड़े बहाने बड़े, फिर बहाने बड़े, बहाना 101। तो ये तरीका है। और छोड़े इनको, दफा मारे, आप अपना अजीम काम है आपका वो करे, छोड़े यार। मुझे नहीं, मुझे कितनी गालियां मुझे भी पड़ी हैं, ये नहीं है कि आप कोई, मुझे कोई पड़ी हो। कभी मैंने कभी कोई बराड़ की हो या कभी उनको मुंह भी लगाया हो। हम तो मतलब इतने मोहतात चलते हैं कि हम नाम तक नहीं लेते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं पब्लिसिटी, मशहूरी चाहते हैं, तो वो मशहूरी नहीं हम देना चाहते इनको। ये उस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि बदनाम होंगे, क्या नाम भी ना होगा। वाह। तो हम वो इस पॉलिसी पे इनको नहीं, भाई इनको तो कोई नहीं कोई जानता, हमें जानते हैं, हमें बड़े जानते हैं। तो ये तो चाहते हैं, ये वो ही है काम के मिर्जा जूनियर जेल में को कोई जानता भी नहीं है, और वो जात दी कोट किरली ते छतीरा नु जफे मुफ्ती मुनीब रहमान आकर मेरे ना मुनादरा, और मुफ्ती मुनीब उनको मुंह भी नहीं लगाते। मुफ्ती तकी उस्मानी आ मेरे ना कर मुनादरा। वड्डे वड्डे लोग ना जी, वड्डी वड्डियां शैवां। कभी वो जाकिर नाइक को पुकारता है, कभी वो इमाम काबा को पुकारता है। अब वो कहाँ और तू कहाँ? तो ये है कि हमें भी जो है ना इन बुजुर्गों से कुछ जो है ना वो सीखना चाहिए। तो इनको मुंह ही नहीं लगाए, छोड़े, दफा करे। जिसने जो करना भाई, अपनी तुम्हारी बराड़ है, तुसी आजाद हो, ये आजाद सोशल मीडिया है, जो मर्जी करो, हमारी सेहत के ऊपर कौन सा फर्क पड़ना है?
भाई पहले तुमने एक गाल निकाली है, 10 निकाल लो और। यकीन माने ऐसी ऐसी गालियां मैं वल्ला मैंने कभी सुनी नहीं थी जो टिकटॉक के ऊपर आके मैंने सुनी। अब गालियां किस किस्म की हैं सुनिएगा, थोड़ा सा मैं वो स्पेस रख के ना आपको बताता हूं। ओए तेरी भैन दे वालां दे विच मैं इंज कਰਾਂ, और तेरी भैन दे कन्नां दे विच मैं इंज कਰਾਂ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताएं ये गालियां ये क्या है ये? यानी ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल चर्सी होते हैं, टुन, बिल्कुल टुन। ये टुन लोगों का काम है, कोई काम तो नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कोई गाली मसाला निकालनी भी है, तुमने बड़ा गुस्सा आ गया, तेरी भैन वो लाम नून कह दो, चलो बस। और गाली भी एक होती है, बड़ी एक या दो दे के साइड पे करो। अब मतलब इनकी जहनीयत देख लें कि 24-24 घंटे बराडें लगी हैं सिर्फ गालियों के ऊपर। तो ये भाई प्रोफेशनल अब्यूजर्स हैं कुछ लोग, तो इनको ना घास डालने, छोड़े उनको, वो मस्त हैं, वो अपने काम में लगे हैं, लगे रहने दें। हम नहीं तो अपने काम में रह जाएंगे। हमारे भी भाई काम है, हम अपने काम लगे हैं ना, हर एक अपना अपना एक काम है, तो वो काम करे बस, ठीक है। रही बात इज्जत और जिल्लत की, तो वो अल्लाह का काम है। वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, और जिसको चाहता है वो जलील कर देता है। वो क्या मसला है? वो कहता है तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो गर्मी के बाद जब सर्दी आती है तो फिर सर्दी का एहसास होता है, सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तो फिर गर्मी का एहसास होता है। तो ये है कि मुखालफत जब होती है ना, मुखालफत से पता चलता है। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को अरूज देते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई हिकमत है, अल्लाह पाक की हिकमत कामिला कि ये अरूज का काम देते हैं ये लोग। तो कोई मसला नहीं, हमें नहीं, कोई टेंशन ही कोई, कर रहे हैं जो मर्जी करें, हमें क्या मसला है। हमने जितना टाइम इनके ऊपर लगाना उतना कादियानियों के ऊपर लगाएंगे ना, उनकी मंजी ठोकेंगे बस। अल्लाह ये कम्युनिटी तुमने भी तस्वीर लगाई थी, गलत की है ना, क्यों की है ये? शाह साहब नहीं लगाते हैं, सिर्फ वो दिखा रहा था कि ये बंदा रात को इंज नहीं करीदा, नहीं इंज नहीं, तरीका नहीं है। संजीदा लोग बोलता है, संजीदा लोग का काम ये नहीं। हम मुकालमात वाले लोग हैं, मुकालमात करेंगे, जरूर करेंगे हम। साहब ये बंदा मुझे बोलता तुम मुल्हद हो, नाउज़ बिल्लाह। और ठीक है, जो भी हम यार ठहरे काफर, यहूदी, मुशरक, हिंदू, सिख, ईसाई, जन्मी, गैर मुस्लिम, जो भी, वो तो अल्लाह ने करना है ना। वो जन्नत दोज़ख देनी है, वो अल्लाह ने देनी है। हमारे इस्लाम को कबूल करना है या नहीं करना, वो अल्लाह ने करना है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के कहने से कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मिसाल फतवा लग गया है, वो एक आलमे दीन ने अपने इल्म का इजहार किया है, बस। फतवा होता है राय। अब मिसाल एक आलमे दीन ने किसी के ऊपर लगा दिया फतवा कुफर का कि तू जन्मी है, तो क्या वो अल्लाह पाक भी वो वैसे ही करेगा? वो मुफ्ती के उस फतवे के ऊपर चलेगा कि भाई मुफ्ती ने दिया था फतवा तो लिहाजा इसको मैंने जन्नत में डालना? भाई वो तो अल्लाह का काम है, वो योम हिसाब को हिसाब किताब हो जाएंगे। लेकिन मुफ्ती ने अपना एक फरीजा अदा किया है, उसने अपने इल्म का इजहार किया, बस ठीक है। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो इसी तरीके से ये दुनियादार जो मुफ्ती हैं, सोशल मीडिया के मुफ्ती, टिकटॉक के मुफ्ती, तो ये अगर कोई फतवे लगाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती बराबर नहीं कोई फर्क पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। सही हो गया, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली। अब आमिर भाई आप कर लें या कर लें किसी ने कोई बात। शर्जील साहब आए मेरे हाल को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब के
एक आध गाली या एक आध मौके पर किसी ने गालियां दी हो ना, तो हम मिर्जाइयों की भी नहीं लुटाते। मिर्जाइयों से ज़्यादा तो हम बुरी कौम दुनिया में किसी को नहीं ना समझते। सबसे बुरी कौम बेशक अल्लाह की इस धरती पे वो मिर्जाई हैं। हम उनकी गालियां भी खा के ना हजम करके डकार मार देते, चलो कोई नहीं, गालियां दे दी उन्होंने, अपनी तरबियत ही दिखाई है, हमें नहीं देनी चाहिए गालियां। तो मुसलमानों को तो बड़ी तरजीह हासिल है कि चलो फिर भी ये कलमा गो हैं, फिर भी ये मिर्ज़ाइयों को मुखरज मिन अल मिल्ला समझते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब दजाल समझते हैं, तो इनकी, लेकिन ये एक आध बार का मामला है नहीं, ये मुसलसल 1.5 साल से गालियां दे रहे हैं। और अभी हम नए नए आए थे, आपको याद है सारा, वो जो पहला ग्रुप जिसने आपको भी करने की कोशिश की थी, पहले आकाश मलक शुरू हो गया, फिर जनाब पता नहीं कोई और उठा, उसने हमारी फ़ोटो टांग दी, फिर तीसरा उठा, फिर उसने टांग दी। ये 1.5 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। एक आध वाक़या हो तो मैंने जैसे कहा, ये पिछले हफ्ते की बात है, वो देवबंदी हमारे भाई हैं, उनको मैं समझाने गया, मैंने कहा यार 3 बार पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया, फिर आए बंद कर दें ये। अच्छा, उन्हें मुझे भी पीछे रगड़ दिया, वो अफजल खान साहब है ना, उन्होंने मुझे भी गाली दे दी वहाँ बैठे बैठे, मैंने नहीं जवाब दिया। एक आध बार कोई बंदा मुसलमान हमें गाली दे दे, हम उसको दोहराते भी नहीं कि इसने हमें गाली दी है, लेकिन एक मुसलसल रवैया 1.5 साल का, हद होती है एक। लोगों को फिर ये बताना चाहिए, जो लोग ऐसे ज़ईफ़ुल ख्याल हैं ना, उनको कम से कम उनकी आंखें खोलनी चाहिए कि यार इतना जुल्म ना करो कि आपको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अंधेरा और रोशनी बराबर होती है, इल्म वाला और जाहिल बराबर होता है, ऐसे नहीं होता। आप समझते हैं कि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं, हालांकि हमने कभी जवाबन गाली लौटाई भी नहीं उनको, इस तरह की गंदी गाली। फिर भी आप कहते हैं कि हमें तो बर्दाश्त ही नहीं है, हम तो बर्दाश्त करते ही नहीं है। कोई कहता है अना का मसला है, कोई कहता है इनकी आपस में आजकल ना कोई अनबन बनी हुई है, कोई इनका कहता है जी झगड़ा चल रहा है। वो कौन सा झगड़ा चल रहा है हमारा? एक तरफा गालियां बंदे दे रहे हैं, हमारा उनके साथ झगड़ा नहीं है, एक तरफा ज्यादती है जो वो 1.5 साल से कर रहे हैं। तो उनका अगर इजहार किया जाए कि ये वो लोग हैं जो अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों को गाली दे रहे हैं, और गाली भी किन को दे रहे हैं? जो लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मजदूरियां करते हैं और दीन का काम करते हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। चलो आपका कोई अब किसी के साथ कोई जमीन का दुकान का झगड़ा है, आप गुस्से में या किसी ने गाली दी, आपको हम जानते तक नहीं है, आपसे वाकफियत, हमें यह भी नहीं यकीन कि आप मुसलमान भी हैं कि नहीं। बड़े बंदे ढोंगी मुसलमान बने होते हैं ना, अपने आप को मुसलमान शो कर रहे होते हैं। तो बंदा कोई आपस में हो ना लेन देन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बंदे ने कहा कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है, आपने पूछा भाई आपने उसके साथ कोई सफ़र वगैरह किया है? कहता है नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कोई सौदा शौदा उसके साथ किया? कहता है नहीं। तो आपने फरमाया कैसे तुम्हें पता है कि वो अच्छा आदमी है? मतलब ना हमने कोई सौदा किया, ना हमने कहीं सफ़र इकट्ठे किया, शक्ल नहीं देखी एक दूसरे को मिलके, तो मुसलसल 1.5 साल से गालियां दे रहे हो। वजह क्या है? वजह यह है कि शायद आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है कि लोग यहाँ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आपको अच्छा ये लगता है कि मुसलमानों का ये इमेज बने, मुसलमानों की ये पिक्चर बने लोगों के सामने, मिर्जाइयों के सामने, कि ये तो हैं ही गालीबाज, जिधर भी जाओ वो माँ बहन की गाली देते हैं, वो दलील से बात करने के बजाय वो सीधा हमें मिर्जा कादियानी को गालियां देनी शुरू कर देते। आपको ये इमेज अच्छा लगता है, आपको ये दलीलें सुनकर देखकर लोग मुसलमान होते हुए पसंद नहीं है। मसला ये है, हमारी नज़र में तो यही मसला है कि आपको इससे तकलीफ है कि लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। यहाँ पर टिकटॉक पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया नहीं, कितने बंदे हम बताएं? ऐसे बंदे हैं, लोगों की प्राइवेसी है, अल्लाह गवाह है, नहीं पेश की जा सकती। मैं कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह वादा ला शरीक को गवाह बना के कह रहा हूं, अभी ये महीना या 1.5 महीना हो गया, एक बंदे का फोन है यही टिकटॉक पे, अभी भी शायद बैठा हो, मुझे नहीं पता, इस ब्राड पे शायद बैठा हो, उसने मुझे फोन करके कहा आमर भाई आपकी बातें हमने सुनी है इतने अरसे से। एक मेरा एक और बंदे हमारे भाई का नाम लिया, कहता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब था, दज्जाल था, उसने हमारा अकीदा लूटा, हमारा ईमान लूटा, मुझे बताएं कि मुसलमान मैंने कैसे होना है। मैंने कहा यही कुफर है जो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया है। आप मुसलमान हो गए लेकिन अभी अपना लान ना करें, क्योंकि आपके साथ ये मसाइल, क्योंकि फैमिली का मसला, मुझे पता है साकी ने इस्लाम कबूल किया 13 लोगों के साथ, तो क्या हुआ उनके साथ?
और लोगों की कहानियां हमारे सामने हैं, तो मैंने उसको रोका कि अपनी आइडेंटिटी शो ना करना। बड़े लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इनको वो पसंद नहीं है, इनकी हमदर्दी शायद मिर्जाइयत के साथ है कि मिर्जाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इनकी बातें सुन के ये नहीं होना चाहिए। और क्या कहें हम, किस नतीजे पर और पहुंचे हमें। जी बस मेरी बात खत्म हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम ये है कि एक मिनट यूसुफी साहब ठहर जाइए, अभी ठहर यार, ठहर जाइए, फिर वही काम कर रहे हो। मौका दे दें। हाँ मौका देते हैं ना, एक मिनट मेरी बात सुने, नहीं गलत बात मौका नहीं करे देते हैं ना, ना, नहीं गल करन देनी तो फिर थल्ले ही बहना है, फिर उत्ते नहीं बहना। मौका अपनी गवारी ते करना, ਜਦੋਂ मौका मिले उदों गल करनी है, यही तरीका कार ਹੁੰਦਾ है। मुफ्ती साहब बात यह है कि जब ये 1.5 साल पौने 2 साल पहले की बात है, जब टिकटॉक पे एक्चुअली मैं तो टिकटॉक पे आया आप लोगों को फॉलो करता हुआ था, यूट्यूब पे आप लोगों को मैं सुनता था, और जब आप लोग टिकटॉक पे आए तो मैं यहाँ टिकटॉक डाउनलोड की है और जैसे तैसे करके, खैर सिर्फ वल्ला मेरा अल्लाह गवाह है, सिर्फ इसलिए आया था कि आप लोगों को सुनने के लिए। अब यहाँ आके जब देखा कि बशमूल इन लोगों के, आप लोग इन लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई आप लोग ये मैचे मूँचो लगाते हो, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हो, ये काम करो, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ करो, ये मकसद है हमारा। अब इनकी तरबियत की, इनको अलिफ से लेकर ये तक कि अलिफ बे इनको पढ़ना सिखाई कि इसको इस तरह पढ़ना है, इसको ये करना है, ये हवाले इनको पेश किए, किताबें खोल के बताए, दलाइल बताए। अब मसला ये है, वही लोग उठ करके कहना शुरू कर दिया, इन्होंने आप लोगों के ख़िलाफ़ ही कंपेन चलाई और आप लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये जो है ना वो कादियानी नवाज है। आप लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने नमाज खड़ा कर लिया है, जो बंदा आप लोगों के साथ बैठता है उन लोगों को इन्होंने रगड़ना शुरू कर दिया। अब बात तो ये है ना कि या तो ये खुद इस कदर ये तालीम याफ्ता हों, इनको पता हो, नॉलेज रखते हों, अवेयरनेस हो इनको, तो फिर ये किसी की गलती निकालें, किसी की इस्लाह करने की कोशिश करें कि मैं इस सब्जेक्ट को आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, यहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, इसको सुधारें। सीखा भी आप लोगों से है, बातें भी आप लोगों की सुनी और सीखा भी जैसा है वो नज़र, मतलब सीखना तो क्या, अब ये जूतियों में भी बैठने के काबिल नहीं है। और फिर यही लोग हैं जो कि उल्टा आप लोगों को फतवा लगा रहे हैं। अब अगर ये लोग यूट्यूब पे होते, मैंने सुने ना मुनाज़रे आप लोगों के, वहाँ ये जाहिद कज़्ज़ाब हो गया, मदूद हो गया, वो नसीम हो गया, बाकी मरज़ई जितने भी हैं, ये अल्ताफ़ वगैरह, वो मुबीन टीजे, ये सारी इनकी जब गुफ्तगू सुनी, किस तरह की वो गुफ्तगू करते थे, बंदे के कानों से खून निकल है। हम लोग सुनते थे, हम ये बड़ा हैरान होते थे कि यार हमारे मुसलमान जो उलमा बैठ के इन लोगों की ऐसी गुफ्तगू सुन कैसे लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आप लोग इसलिए सुन रहे हैं कि सिर्फ ये बंदा टारगेट नहीं है आपका, कि मेरे सामने जो बैठा है मेरा ये टारगेट है ही नहीं। मेरे टारगेट वो लोग हैं जो लिसनर हैं, मुझे खामोशी से सुन रहे हैं, जो अपने घर पे बैठे मुझे सुन रहे हैं और उसके बाद अपनी इस्लाह करते हैं, दीन की तरफ आते हैं। तो ये लोग ये कहते हैं कि आप लोग इनसे गुफ्तगू ही ना करें, क्यों कि आप लोग इनसे जब गुफ्तगू करते हैं वो मुकाबले में इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं जो उनको बर्दाश्त नहीं होते, जो इनके लिए वो हज़म नहीं होते वो लफ्ज़ बोलना। लेकिन वो बात यह है कि जब बंदे को पता ही नहीं है कि ये गुफ्तगू किस मकसद के लिए की जा रही है, इसका असल में टारगेट है कौन है, ये सामने वाला बंदा बैठा हुआ टारगेट है ही नहीं। टारगेट जो लोग हैं वो जैसे आमिर भाई बता रहे हैं, अभी साकी की बात की उन्होंने, साकी ने जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल की थी, उसने कहा कि मैं इस कल्ट से बरात का ऐलान करता हूँ। वो कितना वो आप लोग हम लोग उसको सुनते हैं, बड़ी सॉलिड उसकी आवाज़ है, इतना वो बंदा रोया, इतना रोया, मैं खुद जो थोड़ा जज्बाती हो गया उसकी सारी बातें गुफ्तगू सुन के। लेकिन उसने मुझे जब फ़ोन बंद करने से पहले कहा, उसने कहा यूसुफी अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, लोग तुम लोगों को सुनते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, खुदा की कसम गालियाँ ना दिया करो, इनसे प्यार से बात करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसके लफ्ज़ से इस तरह के कि लोग तुम्हें सुनते हैं, वो मेक श्योर करते हैं वाले, खुदा की कसम गालियां ना दिया करो, इन लोगों से प्यार से बात करो, ये लोग आना चाहते हैं। लेकिन ये जब तुम लोग बीच में गालियां या कोई इस तरह के शुरू होता है ना, तो वो बंद कर देते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते। अब इन लोगों को कौन बताए कि ये जो पीछे जो बैठ के व्हाट्सएप पे जो लोग हमें कॉल करते हैं या राब्ते में होते हैं या मैसेजेस करते हैं। अभी कल की बात है, मैंने आमिर नज़ीर भाई को मैं बता रहा था, तो अब अगर ये सारी बातें यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएं तो क्या वो लोग भी हम पे ट्रस्ट करेंगे कि यार हम इनको अपने राज बताते हैं, हम इनसे ये बातें इस तरह करते हैं और ये लोग हमारा यहाँ पे कच्चा चट्टा खोलते जा रहे हैं।
और ये बेवकूफ़ जो हैं, अब वो शेर मुझे याद आ रहा है, आमिर भाई पंजाबी में सुनाया करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो उर्दू में इस तरह था कि उंगली पकड़ के सिखाया था जिनको चलना, आज वही बच्चे हमें दाएं बाएं करने लगे। जिन लोगों को पकड़ के चलना सिखाया आप लोगों ने, तो वही आपको कहते हैं कि खामोश हो जा, मेरे कहने ते बोलना ते मेरे कहने ते तू चुप होना है, जिथे कहना उत्थे जाना है, जिथे मैं कहना उत्थे नहीं जाना। तू गल भी इंज करनी है, करनी तो वो नहीं करनी। फिर आके सलाह मशवरे देंदे ने, तस्वीरां टंगे मावां भैणां दियां गंदियां गालां कटदे ने, वो कुफर तोलते हैं जिदा रह रब ना। फिर तकलीफ भी इस चीज़ से होती है कि अपने नहीं, खुदा की कसम अपने नहीं, मिर्ज़ई रिकॉर्डिंग कर करके जब भेजते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमारे मुसलमान हमें गालियां दे रहे हैं, ये मिर्ज़ई उसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज रहा है, सुन जरा। मिर्ज़ई भेजते हैं पर्सनल में रिकॉर्डिंग, वो उसके क्लिप काट काट के गालियों के। और ये लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत हैं, हमने बेड़ा उठाया हुआ है, हमने इस मुआशरे की इस्लाह करनी है। कैसे करनी है? किसी की माँ बहन के करके। अगर हमारे उलमा ने कोई किताबें लिखी हैं, उनको भी टारगेट करना है। एने मेरी मर्जी का खिलाफ लफ्ज़ को लिख देता है, विच साहब को लिख देता है, एने कम ही लानती किया है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में जो बंदा ये बात कर रहा है साहब लिख के, इन्होंने कम ही लानती किया, नकल कुफ्र को नबाशत। वो आके कहेगा कि मैं तुम लोग की इस्लाह कर रहा हूं, उसको इबारत पढ़नी नहीं आती उर्दू की, मंतक और लॉजिक को वो समझता नहीं है, और वो ये कहता है कि ये काम गलत किया। इसके सामने बैठ के उसने तो गुफ्तगू के अंदर साहब कह दिया है कि ऐ शातिम रसूल है, ऐ शातिमियत करवांदा है, बिठा के उन्होंने बुला के कहता है कि जी मैं तुहाडे नाल गल करना वा, ए उस तरह की गल करदे ने ते जी ऐ शातिमियत करवा रहे ने। वाह। फिर कहते हैं कि जी असी तो इस्लाही तौर पर गालां कड्ढने आ, असी इन्हां दी मावां भैणां इस वास्ते टंगने आ कि इन्हां दी इस्लाह होए। बहुत अच्छे। किसी दी मां भैन नूं इस वास्ते गाल कढ रहे हो कि मैं दी इस्लाह करनी है, इस्लाह करेगा तुसीं ओनूं इस हद तक ले जाना चाह रहे हो कि वो नहीं गाल कढदा पिया, ओहदे मूंहों नहीं कुफर निकलदा पिया, तुसीं चाह रहे हो कि ये ना चाहते भी कि एक दिन ऐसा काम कर दे कि फिर तुसीं दाएं बाएं देखो। मतलब तुसीं समझदे हो कि तुसीं उत्थों उठ के आ गए हो पाकिस्तान चो, पंजाब के किसी शहर ते उत्थे किसी भी मुल्क दे च बैठ के बाकी जिन्होंने गल कढन लल्ले ही लांगे ने, वो एवें ही ने, उन्होंने तो कोई पिछे नहीं है, या उन्होंने कोल कोई ऐसी गल नहीं है कि तुहानूं उत्थों चुक के किते भी अगे पिछे कर देन। की पता तुसीं किहदे नाल गल करदे पे, कौन है, की किन्ने म्यार दा बंदा हो। तुसीं समझदे हो कि ऐसी दो आने का इंटरनेट लै लिता है, फोन लै लिता है, तो बड़े वड्डे शाहूकार बन गए, जिन्हों मर्जी जो मर्जी कहते रहिए, नंगा नचा देन अगले चौंका दे विच। किसी नूं टारगेट करना है, किसी ने मुकाबला करना, सामने आके करो। अच्छा यूसुफी भाई, अभी मेरा ख्याल है बात लंबी हो जाएगी, तो शाह साहब को बस छोड़ दें यार, अपने अपने वेखो ना, इन्ना टाइम ला छड़िया है। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ ਕੁਝ। नहीं कोई अहमियत नहीं उन्होंने दी, कि दिहाड़ी जिक्र आ जाता ना, कोई बंदा आ जाता विच गल छेड़ दिंदा, वरना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ, ਮਤਲਬ ਐ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਟਾਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੱਲਾ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖੇ ਜੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੇਖਿਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਓਏ ਬਈ ਇੰਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ। ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲकुल भी उस्ताद बिल्कुल मोहतरम कोई नहीं। ये कादियानी है एक भाई, वो आए हैं अता साहब, तो थोड़ा अगर जी अता साहब आ गए हैं जी। ये अताउल कादर भाई म्यूट ओपन करें ना। हाँ जी जी जनाब, अताउल कादिर नाम है आपका? हाँ जी, अताउल कादिर। अताउल कादिर, अच्छा। तो आप मिर्जा साहब के उम्मती हैं? हाँ जी, हैं? उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिर्जा साहब को मानते हैं। मिर्जा साहब के उम्मती नहीं है आप? हम मिर्जा साहब को मानते हैं। नहीं, क्या मानते हैं? उम्मती नबी मानते नहीं, हैं। उम्मती नबी तो नबी उनको मानने वाले जो है उनके उम्मती कहलाएंगे कि नहीं? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाएंगे, क्योंकि हजरत हैं? साहब ने फरमाया कि मैं मिर्जा साहब के उम्मती नहीं कहलाएंगे? उम्मती कहलाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नहीं, आप देखें एक नबी के मानने वाले हैं आप, ठीक है ना? अभी आप फरमा रहे हैं उम्मती नबी के मानने वाले। चलो ठीक है, उम्मती ही नबी क्यों नहीं होया। वो नबी किसका उम्मती था? वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे ना, तो हम सब उनकी उम्मत है। अच्छा आगे। आप उनकी उम्मत है, तो मिर्जा साहब की उम्मत नहीं है आप? और मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, हम उनको मानते हैं। मिर्जा साहब के आप उम्मती हैं कि नहीं? मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, उम्मती, वो खुद ओहो, उम्मती आपकी बात कर रहा हूँ मियाँ, क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला? को मानते हैं। जो मिर्जा साहब को मानते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। आप नहीं है उनके उम्मती, मिर्जा कादियानी के? मैं आप बता तो रहा हूँ कि मैं उनको मानता हूँ। क्या मानते हैं? उम्मती नबी। उम्मती नबी मानते हैं, ठीक है बिल्कुल। आप उनके फॉलोवर हैं कि नहीं? हाँ जी, जी हाँ जी, फॉलोअर हूँ। तो ठीक है ना, तो उसी को तो कहते हैं। एक नबी का जो फॉलोवर है वो उम्मती ही तो होता है। उम्मती की क्या डेफिनेशन है? उम्मती किसको कहते हैं? चले अब लंबी बहस करने का क्या फायदा है? नहीं लंबी नहीं, मैं छोटी बहस ही कर रहा हूँ। उम्मती किसको कहते हैं? उम्मती क्या होता है? उम्मती किसको कहते हैं देखें भाई? उम्मती उसी को कहते हैं ना कि जो मिसाल है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोवर है तो वो हजरत ईसा का उम्मती है। ऐसे ही है ना? तो वो मूसा का उम्मती नहीं अगर है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का फॉलोवर है तो वो जनाब क्या है? यहूदी है कि नहीं? अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की और फिर पै दर पै उसके पीछे रसूल भेजे, ठीक है, अंबिया भेजे, तो जो उन अंबिया को मानता था तो वो लाजमी बात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाई हुई शरीयत जो तौरात थी उसको मानता था, ठीक है। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सही पैरोकार था जो उन अंबिया को मानता था। जो जो तो शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनकी नबूवत क़यामत तक है, ठीक है, उन्हीं की उम्मत है और उनकी उम्मत में एक आने वाला
जो इमाम मेहदी है वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम है, जो जिनका वादा किया गया था। ठीक, तो हम उनको मानते हैं, इस लिहाज से हम सही उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने उनकी बात को माना। अच्छा, ये आपका नाम जो है अताउल कादिर जो आपने रखा हुआ है, तो ये कादिर से मुराद कौन है? कादिर से मुराद अल्लाह ताला। तो मिर्जा साहब तो कहते हैं कि कादिर मैं हूँ। कादिर मैं हूँ, हज़रत मुहम्मद इस्लाम का इल्हाम है, कादिर के कारोबार नमूदार हो गए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हो गए। कादिर का मतलब अल्लाह ताला। हाँ, तो ठीक हो गया ना। तो अताउल कादिर से मुराद ये ना हुआ कि मिर्जा कादियानी का अता करने वाला? क्या? ओ भाई, कादिर से मुराद मिर्जा कादियानी ना हुआ? यानी ऐसे नहीं कह सकते क्या हम आपको अताउल मिर्जा? अताउल मिर्जा नहीं, जब कादिर से मुराद मिर्जा कादियानी खुद है, वो खुद कहता है कि कादिर मैं हूं, ये नाम अल्लाह ने मुझे दी है। हेलो, हाँ जी, कुछ तो बताइए। क्या बताएं? मैं कह रहा हूं अताउल कादिर है ना, तो कादिर की जगह के ऊपर चूंकि कादिर है मिर्जा कादियानी, तो अगर मैं आपको यूं कहूं कि अताउल मिर्जा, तो क्या ये ठीक होगा? मिर्जा साहब अगर कहें ना फिर। हाँ ठीक है, यानी अताउल मिर्जा साहिब, फिर ठीक है। नहीं, कादिर, कादिर अल्लाह ताला ने कहा कि कादिर नहीं, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे नाम दिया कादिर। हाँ जी, अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया कादिर। वो निकालें, वो तहरीर पढ़ते हैं उसको जी, वो तहरीर निकाले, पढ़ लेते हैं उसको। ये मसीह मऊद के 99 नाम ही देख लें। अल फजल अखबार है, मोरखा 14 दिसंबर 1937 का शुमारा है और सफा नंबर 4 है। हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की, अच्छा वो कोई किताब के अंदर से हवाला दे तो वो निकल आएगा यहाँ से। तो क्या ये नहीं मानेंगे आप? 99 नाम उन्होंने दिए हुए हैं कि मिर्जा कादियानी के 99 नाम है। वो देखना जैसे पड़ेगा। अल्लाह के 99 नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, तो उनकी ऐसे ये किताब जारी पे किए हैं होंगे आप ना। लोगों ने मिर्जा कादियानी के 99 नाम। उनकी किसी किताब का हवाला है आपके पास? मिर्जा भाई साहब इसको नहीं मानते क्या? अल फजल अखबार को, अल फजल अखबार में जो कुछ है उसको नहीं मानते? हम क्यों ना असल से पढ़े जहां ओ पर भाई, है। ये अच्छा, इसको सिर्फ क्यों नहीं मान रहे? मतलब कोई वजह भी तो किताब में बताइए नहीं ना है, कि इसको अल-फजल ना में। मानने की कोई वजह। उनकी किताब से में पढ़े। नहीं है, ये अल-फजल में ही है। अब वो असल है ही ये कि 99 नाम अच्छा। लिखे ही यहाँ पर है और कहीं पे लिखे ही नहीं है, असल तो है ही ये, क्या हवाला दे? उसमें हवाला नहीं तो है, आपकी उनकी किताब के किताबों देना में ना, नहीं है। आपकी अखबार के देना ना। चलो ठीक है, अगर उनकी किताबों में नहीं है लेकिन अल-फजल में है, हाँ, ठीक है, वो निकाल लें फिर। निकालें। अल-फजल का मेरे पास नहीं, मैं अगर आप मुझे रूहानी खजाइन में से कुछ देते तो मैं निकाल लेता। मतलब अल फजल को नहीं मानते आप? के मुतल्लिक बात अल-फजल को मैंने कब तो कहा? मैं बाकियों नहीं को मानता। छोड़े, खुद इनके अपने फिरके वालों ने इन पे कुफर के फतवे लगा के तो भेजे हैं कि ये बंदा काफिर। अच्छा सॉरी। चलो, यक ना दो शुद्ध हो गया। दो बंदे पे आए जे अताउल नहीं, कादिर मैं साहब। अपना कंप्यूटर मैंने खोला था तो वो पहले की वीडियो चल रही थी, उसको देख रहा था। अच्छा, कंप्यूटर पे वीडियो अभी चलाई। मैंने वो मैंने इसलिए खोला था। आप वीडियो चला रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पे आप अल फजल ही खोल लें आप, हैं? हाँ जी। अल फजल ही खोल लें, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। अच्छा, अब ये अल फजल अखबार वो ही है कि जिसके पढ़ने की ताकीद की थी आपके खलीफा जानी साहब ने, 2 नंबर खलीफा है ना जो आपके, उन्होंने जब इसकी निजामत संभाली थी, एडिटरी संभाली थी, तो उन्होंने अपनी एडिटरी के पहले शुमारे के अंदर ही इस चीज की ताकीद की थी कि
जमात को इसका पढ़ना जरूरी है, लाजमी पढ़ना, इधर उधर नहीं होना। और फिर वो जामिया अहमदिया में भी जब गए थे खलीफा जानी साहब, तो वहां जाके भी कह रहे हैं कि मैंने जब इन मुरब्बियों से पूछा है कि क्या तुम अखबार का मुताला करते हो, तो कहते हैं कोई ना। कहते हैं ये तो बंदर और सुअर हैं, इन अखबार पढ़ते ही कोई नहीं। उन्होंने सूर तक कहा है वहां पे, पता है कि नहीं आपको? अच्छा, अब आपकी मेन बात क्या है? मेन बात तो अब मेन तो मेन रही नहीं ना, गल ना इधर उधर हो गई है। पहले तो उम्मती के ऊपर बात चली थी, तो आपने उसका भी कोई खातर खा जवाब नहीं दिया, बात इधर उधर ही कर दी है। नहीं, बात इधर उधर और तो फिर ये कादिर के ऊपर बात की है, उसका भी कोई जवाब नहीं। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आपकी नजर में, वो आएंगे आखिरी जमाने में आ गए, तो आपने उनको मान लिया, तो आप किसके उम्मती होंगे? भाई हम तो उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम आ उसके गए, उम्मती हैं हम, ईसा अलैहिस्सलाम आ क्योंकि गए, हम उनके उनको आपने फॉलोवर मान हैं लिया, ना। किसके उम्मती होंगे? जी नो सा सेंस। हाँ जी, ईसा कौन मर अलैहिस्सलाम आ गए, अब आपने उनको मान लिया, तो अब आप किसकी उम्मती है? ओ भाई मान लिया, ये तो कुरान और हदीस ने हमें कहा है ना, तो हम तो अल्लाह रसूल के हुक्म के तहत उनको मान रहे हैं ना। वो तो सारे नबियों को हम मानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी नबी को मान लिया जाए तो वो उसका उम्मती बन जाता है। तो आप ये ईसा अलैहिस्सलाम किसने की कहा है? उम्मती हो जाएंगे फिर, इसका मतलब? किसने कहा है? आपने अभी बोला कि हम जिस नबी को मान लेंगे उसका उम्मती हो जाएंगे। अब ये तो मैंने कहा ही नहीं है, ये तो आप अपना लुकमा मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। अभी आप ही कह रहे थे कि मान लिया तो उम्मती हो जाएंगे। हाँ नहीं, मैंने ये कहा कि फॉलोवर, आपने कहा कि मैं मिर्जा कादियानी का फॉलोवर हूं, मैंने कहा मैं मोहम्मद अरबी का फॉलोवर हूं। मैं उनको मान, तो जो जिस नबी का फॉलोवर होता है, पैरवी करता है, वो उसका उम्मती होता है। उम्मती की डेफिनेशन ये है कि जो जिस नबी ईसा का अलैहिस्सलाम की उम्मती पैरवी हैं कि करने वाला हो उसको उम्मती कहते हैं। आप ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं कि नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं, हैं हम कि नहीं? उनके उम्मती नहीं है। उनको नहीं मानते आप नबी? धक्के शाही कर रहे हैं आप, अपना लुकमा मेरे मुंह में धक्के शाही करके यही आप मेरे साथ यही कर रहे थे उस वक्त से, आप हैं? धक्केशाही मेरे साथ कर रहे थे, यही कर रहे थे आप मेरे मैंने साथ। कौन सी धक्के शाही की है जी? आप जबरदस्ती आप जो है ना वो कुछ निकलवाना चाह रहे थे मेरे मुंह से, अब वही मैं बात। आपके मुंह से नहीं निकलवाना चाह रहा था, बस आपको जो है ना वो एक चीज पूछी है, आपने उसका नहीं जवाब दिया, वो एक अलग चीज है। या आप जवाब देना नहीं चाह रहे, या जो भी आपकी मसलहत है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप हमारे ऊपर तो ना वो थोपे अपनी चीजें। नहीं नहीं, वो जब मैंने एक जवाब दिया था आप सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो फिर मैंने आपसे काउंटर सवाल किया है कि आप क्या समझेंगे। आप जब आप मानते हैं कि आखिरी ज़माने में बनी इसराइल के एक नबी जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वो आसमान के ऊपर गए हुए, वो आखिरी ज़माने में आएंगे, ठीक है? जब वो आएंगे जी तो आप उनको मानेंगे, तो फिर आप किसकी उम्मती बन जाएंगे? जी मुझे हम बताओ। तो पहले ही वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं ना, तो उस वक्त भी हजूर के ही उम्मती रहेंगे। बस ठीक है, यही मैंने जवाब दिया था। नहीं, ये आपका जवाब नहीं है ना। आप तो कह रहे हैं मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानता हूं और मैं उसका फॉलोवर हूं। हाँ, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, आप उनके भी फॉलो करेंगे ना, उनको भी? मैं उनका फॉलोवर नहीं हूं ना ही उनको फॉलो। अगर इतनी जिंदगी मुझे मिली तो मैं उनको तो फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूं ना, कैसे पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा हूं। आज शाम को ही उतर आए, आपको जी? कैसे पता कि हाँ बिल्कुल, उनको फॉलो नहीं मैंने करना, मैंने तो हजूर अलैहिस्सलाम को फॉलो करूंगा। अच्छा, अगर नबी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दज्जाल को कत्ल करेंगे उसके बाद उनके ऊपर वही क्या होगी। क्या क्या फरमाया नबी करीम ने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो दज्जाल को कत्ल कर लेंगे तब अल्लाह ताला उन पे वही करेगा, और वो ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा, वो अपने सहाबा को लेके तूर पहाड़ के पीछे चले जाएंगे।
ठीक है, हाँ वो हदीस पूरी खोल ली जाए, आप उनको फॉलो करेंगे तो वो हदीस पूरी खोल ली जाए। खोल लें, पूरी हदीस खोल लें। वो पता है कौन सी है, कोई नंबर बताएं, कोई किताब बताएं कहाँ पे लिखी। 73 सही मुस्लिम 7373। अच्छा जी, सही मुस्लिम की कितने नंबर हदीस है? 73। और एक मिनट ठहरना जरा, थोड़ा जा मैं ना नहीं खोलना- ਉਹ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਨਣ ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਲੜਾਈ ਸਲਾਮ ਲੋਕ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ मोहतरम ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲਾ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦੋ ਐਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। अच्छा जी ये कितने नंबर हदीस है जी? 7373 सही मुस्लिम। अच्छा 7373। अच्छा तो ये तो मैंने अभी आपकी मुस्लिम शरीफ खोली है, उसमें 7373 तो कोई और हदीस है। वो सामने करे ना कौन सी है, ये बात क्यों कह रहे हैं ना आप? लंबी सामने एक मिनट है, ये मैं यहाँ से ये वाली ये आपकी है ना, सही मुस्लिम 15वीं जिल्द नूर फाउंडेशन की। L'autre jour, vous m'avez donné 500 euros là-bas et 150 euros pour cette voiture. कौन मर गए? हाँ जी, खोले आप हदीस खोले, मैं की हो गया? आप खोले हदीस खोले। ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा पता नहीं, मैं क्या शायद कोई ਭਾਂਡੇ खबर ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ। मैं क्या जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਨੇ ਅੱਗੇ जाने। हेलो भाई जी। हाँ जी, हदीस आपने खोल ली है? मैंने कहा ये वाली जो किताब है ना आपकी है ना, कोई और है? हाँ जी, खोलो। ये ले तो सही इसके मुस्लिम अंदर तो 73 वो 73 नहीं है, ये सफा नंबर 122 के ऊपर है, ये किताबुल फितन, ठीक है। और ये 5214 है, ये नवास बिन समान वाली हदीस यही है ना। एक दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और उसके जिक्र में आवाज बहुत धीमी हुई, ये वाली हदीस ही है ना? आगे पढ़े आगे। है यही कि कोई और है? नहीं, ये नंबर तो 73 था, लेकिन अगर हाँ, तो ये यही तो मैंने आपसे पूछना था कि की डंडी मारी जे 73 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀਸਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ? इसको पीछे करें जरा, ये कितनी लंबी हदीस है। अच्छा एक मिनट, ये बड़ी लंबी हदीस है, ये देखिए आगे चलती जा रही है, ये देखिए। तो ये इसमें जरा से पूछना था वो निकालें कि असल तो इसकी 73 ही है मुसलमानों की मुस्लिम शरीफ के अंदर, और ये बीच में तकरीबन 2000 हदीसें आप लोग कहाँ खा गए हो? अच्छा बात सुने, नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2000 हदीस किधर गई आपकी है? हदीस है ना 73 वो निकाल लें। नहीं वो तो ठीक है ना, एक मिनट आप अपनी जो मानते हैं ना वो निकाल लें। एक मिनट ना, थोड़ा ऐसा बात करते हैं ऐसा। हाँ जी, ये बकाया 2000 गई किधर? ये 52-14 आ गई है भाई। बात सुने, आप ना जो अपनी मानते हैं ना वो निकाल, अपनी मानती हैं। ठीक है ना। आप यहाँ से निकालें, अब नीचे जाए, इसमें देखें दज्जाल का जब कत्ल कर लेते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद क्या होता है। नहीं पहले तो भाई हदीस तो बाद में पढ़ूंगा, पहले तो इसका तो कोई जवाब दे। ये 52-14 किंज हो गई 73, इसका कोई जवाब तो दें आप, कम से कम हदीस पढ़ती है अभी, शुरू से पढ़ेंगे, वैसे बीच में नहीं हम पढ़ेंगे। आप हदीस पढ़े जो काम है भाई, बीच में नहीं पढ़नी, हमने शुरू से पढ़ेंगे। नंबर ये लगाए या वो लगाए,
पहले नंबर इसको दे लें या पहला अच्छा, चले नंबर ठीक है। दूसरे को दे लें। अच्छा जी, मैं अब इसमें कोई फर्क हदीस नहीं पढ़ने है। की इजाजत है, मैं पढ़ूं? ठीक है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर थोड़ी लगा के गए थे, हदीस पढ़ने की आप नंबर इजाजत है, पढ़ने पढ़ूं? लगे। नंबर को छोड़े, जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पढ़े। और हाँ, चले ये हदीस इजाजत तो पढ़े। दें, फिर और पढ़ूं वहाँ कि ना पढ़ूं? उसको वहां से पढ़े। हम उम्मती और हैं? फॉलोवर में बात कर रहे थे ना अभी, तो आप वहां से पढ़ें जहां से हजरत ईसा नहीं, मैं अलैहिस्सलाम बीच बीच में से तो नहीं, हदीस अपने तो पूरी होती सहाबा है कि बीच बीच में कौन सी हदीस है? अपने मतलब के आप लफ्ज बीच में से पढ़ लो और बकाया को छोड़ दो, ये कौन सा तरीका है? ये तो जैली लोगों का काम होता है, चोरों आप का पूरी हदीस पढ़ लें। मैं तो सिर्फ या चूहों का इससे कह काम रहा होता था है कि बीच में आप पुतरना। ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। जब वो तो ठीक है, हदीस शुरू से ईसा पढ़ते हैं ना, अलैहिस्सलाम जब अपने सहाबा को लेके तूर पहाड़ ये शुरू से पढ़ने की इजाजत है, मैं पढ़ूं? जी जी पढ़े, शुरू से पढ़े। हजरत नवाज बिन समान बयान करते हैं कि एक दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और उसके जिक्र में आवाज कभी धीमी हुई और कभी बुलंद, यहां तक कि हम समझे कि वो दज्जाल करीब ही खजूरों के झुंड में है। जब हम शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में घबराहट के आसार पहचान लिए और फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है? हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह आपने दज्जाल का जिक्र किया था, कभी आपकी आवाज धीमी थी कभी बुलंद। हम समझे वो खजूरों के झुंड में है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के अलावा और अमूर का तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा खौफ है। हेलो, Wallahi Azim, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire quelque chose encore pour vous. Parce que vous êtes sérieux. Mais prochaine fois, je vais faire un message à vous. Et pour... on va laisser un message. Mais pour le moment, je peux faire quelque chose encore plus pour vous. Vous m'avez donné 500 et 150. Je vais ajouter encore 100 euros. J'ai fait un bon prix pour ça aussi. Je vais ajouter 100 euros encore pour ces voitures-là. Comme ça, vous... C'est comme la voiture. Oui. अच्छा, हेलो जी मुझे हेलो, 1 मिनट बस मुझे दे दें, अगर मुझे 1 मिनट बस, मैं फिनिश कर लूँ एक डील। हाँ। असल में वो पीछे पीछे वो बर्तन वाले भी कह रहे हैं कि साथ साथ बर्तन धोने हैं, बर्तन भी काम भी करना होता है, सारी बात है। फिर शाह साहब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम में तवज्जो नहीं फरमा रहे जी। नहीं तो जो अभी फरमा लेते हैं, ये अभी इनसे मैंने पूछना है कि ये तर्जुमा कहाँ से, हदीस के कौन से अल्फाज का ये तर्जुमा है? हेलो भाई जी, आओगे तो कोई पता चलेगा ना। वो शाह जी, वो कपड़े नहीं सी घर तो होके आया, बुढ़ी मगर आ गई कपड़े तुम्हारे। अच्छा, दज्जाल के अलावा और अमूर का तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा खौफ है, ये हदीस के कौन से अल्फाज है जिनका ये तर्जुमा है जी? हेलो भाई, तुसी कपड़े धोन लग पे हो ते इत्थे सानू सुकने पा छड़िया जे। शाह साहब, मसीह दा एक और शेर आया, तैर अहमद। ओए हमें हुंदी इंज कर, व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज कर मैनू जल्दी पूरी। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तेनू मैं ना सारे स्कैन तेनू मैं सेंड करना हूं ते मैं ना ओए चुप कर जाए। अच्छा ओए हमें हिंदी करी यार मैसेज। शाह साहब, मैं पिछा जाना में ते ब्राड ना डिग पवे। ओ नहीं डिगदी, 1 सेकंड नहीं लगदा ते मैनू मैसेज करते ताकि तेनू मैं स्कैन सेंड करा, या कोई होर बंदा करे। यूसफी तू कर ले भाई। जी ठीक है, मैं कर मैसेज कर, तेनू मैं सारे स्कैन सेंड करना वा ते ए बंदे नू बन के रखी, इधर उधर हिलन नहीं देना। मैं जरा निकलना है यार, सही बन के डिबेट करनी। उन्होंने मन लिया जिन्होंने भांडे नहीं धो के आया। ਇਹ ਬੰਦਾ शाह साहब ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, नहीं है बंदा ना, वैसे जो भी है वे
गुफ्तगू तो अच्छा लगे, अच्छा कादियानी। वो मसलन बाबा कोई अद्धा घंटा घंटा करते ने नहीं नहीं अच्छा कादियानी सारे कादियानी अच्छे नहीं होंगे, ए जी अच्छा बिल्कुल हाँ। है हुन तैरे ते बड़ा साफ कहिए बदतमीज है। यूसफी ए सनी सारे कादियानियां दी ते ए अपनी अब हुन मैं सेंड करन लगा और ਇਹਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤਰਜੁਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 15 ਲਾਮਤਾਂ डरने मेरे को ਪਹਿਲੇ 15 ਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मुफ्ती शाह मेरे को डरना है ਯਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸੁਮੇ ਵਿੱਚ मैं तेरा जा भाई मिर्जा कादियानी दी तालीम दे ਓਏ रहे ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਦਜਾਲ ਦੀਆਂ 15 ਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 43 ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। हेलो अता साहब आ गए हो? अता साहब मौजूद हो? अता साहब भी टुर गए ने। हाँ जी मैं ਅਸੀਂ ਵੀ सुन रहा हूँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜੇ ਫਿਰ। मैं सुन रहा हूँ। हेलो ये अता साहब ये हमारे तालिब इल्म है यूसफी, तो ये आपसे बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे काम है थोड़ा सा, मैंने जाना है। ठीक है, एड्रेस दे ला। अगर कुछ बात बताना चाहते हैं तो मुझे बताते जाए, मैं ना साथ साथ सुन रहा हूँ, मैं बाइक बंद करके ना कोई सुन रहा बात नहीं, ये बैठे हैं यूसफी बैठे हैं, ये आपसे बात करती हैं, मुझे तू वेला एड्रेस आप टेंशन न लें। चलें यूसफी रेडी हो? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਉਹੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ जी 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 चलो जी गुफ्तगू जारी करो। रब रखा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम साहब। जी अताउल कादिर साहब, आप हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं या आपकी क्या मसरूफियत है? जी मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नेक्स्ट फिल्म बना रहा हूँ और साथ ही फिर मैं चले जब फ्री हो जाए तो आप बता दीजिएगा, उतनी देर कोई और बात कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं ना मैं खाली बोलता रहूँगा तो आप ऐसे मजा नहीं आना यूसफी भाई। हाँ जब आप फ्री होंगे तो बता दीजिए। ठीक, बस 5 मिनट में फारिग हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई और दस साहब आ गए तेन जी। की चमूना लड़िया, तेनों भी चमूना लड़िया सी। और क्यों डरते हो? मसला ये बनया तैर अहमद साहब कि वह मिर्जा साहब जदों फौत होए सन और क्यों डरते हो गुलाम अहमद के शेरों से? गुलाम अहमद से क्यों डरते जड़ा हो? यार पूरी तो गल सुन लेना, गो और होन आ रहा सी तैर अहमद साहब। अगर यहीं दे वाले सुनने जे तो फिर यहीं दी गुफ्तगू करो दे तो मैं यहीं दे वाले ध्यान दा जी, फिर मसला बनेगा तुहानू। फिर ते मेहंदी वाले राणा डिश ठीक है, बात करो मर्दों की तरह, शेरों की तरह। तो मिर्जा साहब के वो जो लिखी हुई है सिरते मेहंदी, उसको किधर करें? और तारो ना अपने ईसा को, और जो सिरते मेहंदी लिखी हुई है उसको किधर करें? मुफ्ती शाह नकवी। क्या कहे? एक मिनट ताहिर अहमद साहब जरा एक मिनट जरा ओए भाई मुफ्ती- उन्होंने हवाला लबे वो जो मिर्जा साहब ने वो चुमुना लड़िया सी, तो वो उन्होंने उंगली ओए डाल के मुफ्ती शाह नकवी। चुमुना सी। वो मेरे को हवाला पे है, तो कहोगे तो मैं तुहानू सेंड कर देवांगा। मुफ्ती नसगी ला दो इत्थे। मेरा कैमरा नहीं ऑन होंदा, मैं तुहानू सेंड शाह की सही। हाँ या तो पढ़ के सुना देना हाल। और के खुसरे वाले कम करके हैं क्यों करना है? और मिर्जा एक बार अपनी हाजत वास्ते गया है ते उत्थे टट्टी कर रहा सी, ते उत्थे अपनी बोड़े च उंगल पाई है, तो उत्थे चमूना ओनू लड़ गया सी, चमूना निकालिया ते दीवार नाल ला दिता इन्ना नेस्ती गंदा। कहोगे तो हवाला मैं तुहानू देंदा ताहिर अहमद साहब। मामा भैणा नू देखना जाके, अपनी मामा भैणा नू लैटरीना च देखना है। यार ये सन
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ साहब देखते थे सन वो ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ लड़की नाम ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਸੂਏ ਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ये अजी मर्जियत का गंद आप देख सकते हैं, ये गालीबाज हैं, का गंद कितनी गालियां निकालते हैं ये है जी मर्जियत। अपनी माँ पे लैटरिन ये फिल्म बनाना है। मर्जियत निदा नसर के साथ जुल्म जिन्होंने अपनी माँ पे लैटरिन ये निदा नसर वाले हैं, ये फायदा बीबी वाले हैं। ताहिर साहब मैं ते हवाले दे नाल ये मर्जियत ये गंद वर्गो ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ओ खुश रहे हो ओ ये मर्जियत ये वो गंद ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ना कोई बंदा गाल ना कटे मैं थल्ले ला देना ਗਾਲ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ गाल भी शर्मिंदा हो जाती है गाल ਨੂੰ इस्तेमाल करिए ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਟੱਟੀ ਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਸ਼ੋ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ लो जी ये मर्जियत है ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਟੱਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਯਾਰ ਹਮੈਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ जी अम्बला साहब ਹਮੈਨਿਟੀ जी ਹਮੈਨਿਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ वो को जरूरी है कल राणा साहब ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम तेरा मुर्शद साहब वालेकुम सलाम यार वो चला गया अताउल कादिर कादियानी वो असल में वो दोबारा आ गया था अहमद वो मसरूफ था वो ताल कादर तो कहता था बस मैं सुन नहीं रहा हूँ तो वो ऊपर बैठा हुआ था अताउल कादिर साहब अगर है तो जरा उनको कॉल डालें मैं डालता हूँ कॉल चलो 2 मिनट में हूँ तो बात कर लें थोड़ी सी कोई और भी कादियानी आ सकता है या सिर्फ नहीं वो भी आ जाए कोई और भी आ जाए कोई मसला नहीं है लेकिन उनसे वो थोड़ी सी बात रह गई थी तो वो करनी थी वो अभी लिस्ट में हो सकता फॉर यू पर देख रहे हो अताउल कादिर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो 2 मिनट के लिए भले आ जाए तशरीफ लाइए अच्छा कोई और कादियानी उठा ले आ जाए भाई देख रहा हूँ सहेल नासर साहब सुन रहे हैं इसके अलावा अच्छा चले फिर वो हवाला मैंने देना था उनको तो इन अभी सबको ही दे देता हूँ हवाला देखिए जी उम्मत के ऊपर बात हो रही थी तो अब मिर्जा कादियानी क्या कहते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 है सफ़ा 344 है आईने कमालात इस्लाम है मिर्जा कादियानी कहते हैं जो शख्स नबूवत का दावा करेगा इस दावा में जरूर है कि वो
खुदा ताला की हस्ती का इकरार करे। अब देखिए मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और खुदा ताला की हस्ती का भी इकरार किया, جی और नीज ये भी कहे कि खुदा ताला की तरफ से मेरे पर वही नाजल होती है, और मिर्जा कादियानी कहता था मेरे ऊपर वही भी नाजल होती है। सारे काम हो गए हैं, आगे सुनिए। और नीज खलकुल्ला को वो कलाम सुनावे जो उस पर खुदा ताला की तरफ से नाजल होता है। तो मिर्जा कादियानी ने लोगों को जो उसके ऊपर वही नाजल होती थी, उसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया वल्ला, आई लव यू, गसम गसम गसम, दो उस्तरे ते अतर दी शीशी। तो उसने वो अल्लाह की तरफ से जो कलाम उसको नाजल हुआ है ना जी, वो उसने सुनाया। आगे लिखा है और एक उम्मत बनावे जो उसको नबी समझती और उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती हो। अब ये देखें, अब ये सवाल है कि جی احمد اسلم صاحب کیوں شور آ رہا ہے آپ کی طرف؟ ان کا مائک بھی نہیں میوٹ ہو آپ رہا۔ نا یہ 4 والے پینل کر دیں یار، وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ کٹنگ ہوتی ہے نا، اچھا وہ 4 والے پینل، وہ 8 والا جو پینل ہے نا وہی کر دیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے قادیانی، مرزا قادیانی کے امتی ہیں، یہ قادیانی امت ہے مرزا قادیانی کی۔ یہ ساری چیزیں اس نے اپنے بارے میں بتائی ہیں، اپنی امت کے بارے میں بتائی ہیں، اپنے بارے میں بتائی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ عطا القادر صاحب کو یہ حوالہ دینا تھا تو وہ بس اب ہے ہی نہیں، اب کیا بات کریں اور کس سے کریں۔ مولوی بشیر صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ احمدیہ صاحب آئے ہیں۔ جب اللہ دیندا تو پھر انجے ہی دیندا جے۔ اچھا گل سن سکتے ہو گل مفتی صاحب کہ وہ جڑی نہیں، حدیث آپ ہے، پہلے یہ بتائیں مرزا قادیانی کیا حکومتی ہے کہ نہیں؟ قادیانی وہ مربی جڑی ہے حدیث ہے وہ اکاڑا دے وچ مولوی نے پوری کر دتی، مسجد یار دے ایک وچ ایک بندے کنجریاں دی نچا گل دتیاں، کراؤ۔ مسجد دے وچ کنجریاں نچا دتیاں، بدترین مخلوق ثابت ہوئی کہ نہیں مولوی اکاڑا؟ یہ احمدیہ صاحب پہلے بات کر لیں، آپ پہلے آئے ہیں تو وہ رحیل قادیانی مربی صاحب کو بعد میں لیتے ہیں۔ جی احمدیہ صاحب، ہیلو احمدیہ صاحب بات کریں۔ احمدیہ صاحب، ہیلو، مفتی صاحب اچھا جی، اے پرچی جناب پڑھنے پہ اسی اے روحانی خزائن جلد 5 تے صفحہ 344، آئینہ کمالات اسلام دی پرچی ہے۔ وائس چینجر لگا کے آیا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مربی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا مربی صاحب یہ بتانا کہ آپ مرزا قادیانی کے امتی ہیں کہ نہیں؟ وغیرت کے بچے سامنا کو گالی بات ہے یہ تو شاہ رہ کوئی بات نہیں، چپ کر کوئی بات نہیں۔ اچھا تو آپ مرزا قادیانی کے امتی ہیں کہ نہیں؟ ہیلو، مفتی صاحب تمیز سے بات کریں۔ وہ کی تمیز کی کریے، دسو کی کہیے تانوں، کی کہیے دسو۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھ کے ذرا بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے۔ بھاگ گیا شاہ صاحب، جوتے چھوڑ گیا۔ بس یہی بات ہے۔ تو دوستو یہ قادیانی مرزا قادیانی کے امتی ہیں، یہ ویسے ہی انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ نہیں جی وہ تو ہم وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ قادیانی مرزا قادیانی کی امت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے۔
अगर इसका कोई सॉलिड जवाब होता तो ये इतने कादियानी में कोई एक भी जवाब ना देता। ये हवाला नोट कर ले, बल्कि स्क्रीन शॉट ले लें यार, फिर मैंने जाना है। ये स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लें। ले लेते हैं, लेकिन इनका क्या करना है? ये जो मुरब्बी साहब वॉइस चेंजर लगा के आए हैं, गालियां देते हैं। कोई नहीं, इनके पास कोई जवाब ही कोई नहीं। तो अच्छा, मैं यार बच्चा खड़ा है तो मैंने जाना है, तो पहले भी थोड़ी सी बात करने के लिए आया था मैं, तो मुझे इजाजत दें। आमिर भाई मौजूद है, यूसुफी भाई वगैरह? मौलवी ने 85 किताबों चो एक सतर कड्डी जे अजे ना यार पूरी किताब खोल लवा, 85 किताबों चो एक सतर कड्डी है, पूरी किताब ही खोल लवा, पूरी किताब है रहील, और जे रहील पूरी किताब है। ये भी मुरब्बी है शाह साहब। दे विच मौलवी ने मस्जिद च नचा दित्तियां चकंजरियां, ए ਤੁਹਾਡਾ हाल जे। बैतें हो गई 101 रहील, बैतें हो गई 101 1001 यार की करदा पे 1001। अच्छा अच्छा, फार्म ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਦੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਮੌਲਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਰਮ? देख लो मस्जिद ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ हो चुकी है 101 अल्लाह के फजल से, ये हो चुकी है 101 अल्लाह के फजल से, ये हो चुकी है 101 अल्लाह के फजल से, ये हो चुकी है 101 अल्लाह के फजल से। 90 रहते हैं भी, 90 फॉर्म तकसीम हो गए अल्लाह के फजल से। पूरा अफ्रीका जिन्होंने 90 रहते हैं भी, 90 फॉर्म तकसीम हो गए अल्लाह के फजल से। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। जिन्होंने 90 रहते हैं भी, 90 फॉर्म तकसीम हो गए अल्लाह के फजल से। ओके, अल्लाह हाफिज। आज की मेरी आखिरी गुफ्तगू थी। जिन्होंने फॉर्म तकसीम हो चुके हैं, अब कितने फॉर्म तकसीम है? 82 84 87 फॉर्म तकसीम हो चुके हैं। से लोग जो अहमदी हो रहे हैं उनकी बैतें भी बननी है। मैंने उधर भी जाना है, क्योंकि मैं आज छुट्टी है, कल भी मेरी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। दीन और दुनिया में अल्लाह ताला खुद ही कामयाबी। बिजनेस क्या शाह साहब, ये इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है 101, बैतें हो गई है 90, बैतें हो गई है 32, बैतें हो गई है, बैतें 420 हो गई है, बैतें हो गई हैं ਅੱਜ ਤੇ 1001 ਹੋ ਗਈ। नहीं 90 फार्म होए सन, हुण 1090 फार्म हो गए। ਓਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੈਂਡਕ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਤ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਮ ਤੇ ਪੈਰ ਜੂ ਰੱਖੇ। ਆਹੋ, किताबा जो मौलवी ने 170 कड्डी है, हो गई है 101 अल्लाह के फजल से। बेटा दस छड़ तू, अल्लाह के फजल से बेटा सुना। नाइजीरिया का गवर्नर जनरल ते मिर्जा कादियानी सी ना, है गवर्नर जनरल मिर्जा कादियानी। अंदर मैनू इल्हाम होया गवर्नर जनरल। ਚੂੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਰਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਚੂੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਯਾਰ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਵੋ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਰੂਦਰ ਗੋਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ? ਸੜੋ ਗੱਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ?
ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੋਬਾ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਡਮਰੂ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਬਵੋ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਬਾਈ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਰਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।